नॉलेज मिल रही है फ्री. There are mistakes which can be three. These three topics which I'll be discussing with you can help you maintain your lifestyle for the rest of your life, and these are very critical mistakes. We learn in this video. Hi, welcome to a brand new video. I'm Rahul Kamra, founder of Ketorets, and thank you so much everybody for supporting the last video, plus also liking the video which is keto and cholesterol, keto and hypertension. मैं बहुत ज़्यादा overwhelmed हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना support दिखाया है. In this video, we'll be talking about something which is a psychological aspect. कुछ बातें जो आपके कोच या आपका ट्रेनर आपसे बात नहीं करना चाहता है, जो उनके करिकुलम में या उनके कोर्स में नहीं है. Apart from nutrition, they don't want to talk about exit strategy. They don't want to talk about mindset change. I'll be telling you 3 mistakes which I've seen quite a lot of people making after leaving the Ketorets method, and what are these 3 mistakes or 3 failures you can say जो आप इस पूरी वीडियो में समझेंगे. तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि कुछ हम लोग गलतियां ऐसी करते हैं जो सिर्फ न्यूट्रिशन से रिलेटेड नहीं होती हैं. कुछ गलतियां ऐसी करते हैं जिसकी वजह से हम हमेशा अपनी डाइट में फंस जाते हैं. एक डाइट को करते रहते हैं, वर्कआउट करते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते हैं. हुआ होगा आपके साथ भी काफी बार. तभी आप जाकर के ये वीडियो सर्च कर रहे हो, तभी आप जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो. So you must have tried some kind of diets or some kind of failures which you must have faced, but these 3 failures are very critical. अगर आपके साथ में ये एक भी चीज फेल होती है तो फैट गेन करना या अपने लाइफस्टाइल को स्पॉइल करना 100% पॉसिबल है. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. लेट्स कम टू द फर्स्ट फेलियर, हंगर एंड टेम्पटेशन. What is hunger and temptation? These two are very bad friends. अगर आप किस दिन भूखे हो और उस दिन आपको टेम्पटेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे. You will definitely leave your diet. You will definitely stop your workout also. You will be in that rabbit hole जहाँ पे आपको लगेगा जो भी चीज़ें आपको खानी है, जो भी आप खा रहे हो, जिस टाइम पे भी आप खा रहे हो, उसके साथ में टेम्पटेशंस के अलावा आपको भूख लग रही है. तो कितनी बार ये होता है कि आप अपना मील स्किप करके चले जाते हो. किसी सोशलाइजिंग इवेंट पे आप किसी को मिलते हो या किसी टाइम पे आपको भूख लगी होती है और वो भूख काफ़ी बार आपके बोर्डम की वजह से नहीं होती. एक्चुअली आपकी बॉडी भूखी है, आपको खाने की जरूरत. And with this you see something and you are very tempted to do this. This is a vicious circle. क्योंकि क्या होगा, आप टेम्पटेशन में गिवन तो कर लोगे, आप खा तो लोगे, but then you will go on a guilt trip again. Then you will have to start your routine again, and getting back to your routine is a very difficult task. I've seen a lot of my Ketorets members when they say, राहुल हमें प्लान फ्रीज कर दो, हमें आपकी डाइट से कुछ महीनों का ब्रेक चाहिए, हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं. उनके लिए वापस आना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो ब्रेक जो ले लेते हैं उस टाइम पे they start eating everything left right center. And this has happened to quite a lot of people. Those who go in the evening when they go for dinner, they would not eat something and they would not actually eat and leave. They would go there and then try to figure out. तो पहली चीज तो आपको हमें पता नहीं है कौन सा मेन्यू है, and you are already hungry and now you're getting tempted because other people are also eating things around, because nobody gives a damn about your diet and you have to be very very serious about your routine. So there are a lot of studies, especially a study from Pennsylvania which was about a lot of people those who were hungry and the body produces a hormone called as ghrelin hormone. ग्रेलिन और लेप्टिन का ही सारा खेल है. लेप्टिन आपकी भूख को कम करेगा, ग्रेलिन आपकी भूख को बढ़ाएगा. तो अगर आप भूखे हैं तो उस टाइम पे आपकी टेम्पटेशंस ज्यादा होंगी. जब ग्रेलिन ऊपर जाएगा तो डोपामिन, गुड फीलिंग वाला फैक्टर आपका नीचे जाएगा, एंड विद दिस यू विल फाइंड योरसेल्फ दैट यू आर जेल्ड आउट इन अ डाइट. एक डाइट में आप फंस गए हैं, परेशान है, एंड नाउ यू आर हंग्री प्लस यू आर टेम्प्टेड. यू विल 110% गिव अप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो डोंट मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक. अगर आप एक डाइट पे भी हैं, डाइट के बाद भी अगर आप एक रिवर्स डाइटिंग रूटीन से फॉलो कर रहे हैं, और इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और लो कार्बोहाइड्रेट routine, because the food which you eat matters a lot when it is about fat loss. So what is the way forward? That you should pre-plan your days. अगर आपको पता है कि आप शाम को कहीं बाहर जा रहे हो, you should be eating and then leaving. भूखे मत निकलो बाहर. Temptation होगी, but if you're not hungry, you will be able to control. That is going to be your best case scenario. Another thing is scan menus beforehand. Plan कहाँ पे जा रहे हो, कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे हो. There are a lot of websites also which have this menu. Otherwise, you can find on maps as well. They upload their menus. See whether what options you're going to eat, so that you have clarity about what you're going to have, so that when you're eating there also, you don't feel left out and you don't feel tempted. This is all about your mindset which you have to change so that you can pre-plan things and आप अपनी डाइट से डेविएट ना हो जाए. अनदर पॉइंट टू ऐड टू दिस इज कि अगर आपकी बेसलाइन डाइट ही ठीक नहीं है तो आपके साथ में टेम्पटेशन जरूर होगी. इफ योर डाइट इज नॉट बैलेंस इनफ विद प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, इफ यूर ऑन अ कीटोजेनिक डाइट जिसके अंदर आप कम फैट्स खा रहे हो, यू विल नॉट बी सैटिस्फाइड, यू विल ऑलवेज बी हंग्री. सिमिलरली अगर आप एक लो कार्ब डाइट खा रहे हो जिसके अंदर बहुत ज्यादा भूखे रहते हो, आपकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी अपनी टेम्पटेशंस और अपनी क्रेविंग्स में गिवन करने की. क्रेविंग्स के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, नहीं तो आप ऊपर वाले आई कार्ड पे क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल. सेकंड बिगेस्ट फेलियर इज एरोगेंस एंड इग्नोरेंस. इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ. यार मैं अपना वेट नहीं चेक करता हर दिन.
क्या फायदा चेक करके, वही ऊपर नीचे होता है थोड़ा बहुत 500-700 ग्राम, क्यों चेक करूँ उसको मैं, छोड़ो। बॉडी मेजरमेंट्स भी नहीं करता मैं, पुराने कपड़े ट्राई नहीं करता हूँ। आई लाइक वेयरिंग लूज क्लोथ्स, ग्रेट। कोई मुझे बोल दे कि तुम मोटे लग रहे हो तो मैं इस बात का बुरा मान जाता हूँ। हैपेंस टू लॉट ऑफ अस, राइट? वी बिकम इग्नोरेंट टुवर्ड्स आवर फैट लॉस, वी बिकम इग्नोरेंट टुवर्ड्स आवर प्रोग्रेस एंड वी बिकम एरोगेंट। एक तो क्या है, हमारे कल्चर में लोग बोलते हैं बड़े हेल्दी लग रहे हो, वो इतने तमीज से भी बोलेंगे नहीं कि अच्छा तुमने फैट गेन कर लिया है, आप उस बात का बुरा मान जाएंगे। एंड दिस एरोगेंस एंड इग्नोरेंस आर वेरी गुड फ्रेंड्स। ये जब साथ में एक बार आ जाते हैं तो फिर आपका फैट गेन होना 100% पॉसिबल है। There's a study by Harvard which also proves that our brain would find its defense mechanism, and plus when we become ignorant, it also becomes arrogant at one point of time where you start feeling कि लोग आपको कॉर्नर कर रहे हैं, वो आपको आपके फैट लॉस के बारे में बोलना चाहते हैं। उसको काफ़ी लोग बॉडी शेमिंग भी कहते हैं। उसके बॉडी शेमिंग के ब्लैंकेट में आप कोशिश करोगे अपने डिफेंस मैकेनिज्म को ढूंढने के लिए। इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, अपना रियलिटी चेक खुद करिए। अपने आप को जाकर के मिरर में मत देखिए, बट अपने वेट को, अपनी बॉडी मेजरमेंट्स को, आप कितना खा रहे हो, कितना आपने स्टार्ट करा था, आपके क्लोथ्स कैसे फिट होते हैं, ये आपको करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज दिस इग्नोरेंट एंड एरोगेंट एटीट्यूड विल मेक यू गेन फैट। The third pivotal mistake is I know my body dilemma. ये बहुत लोगों को होता है, मुझे अपनी बॉडी के बारे में पता है। I have lost fat, I know my body। कितने लोगों से जब मैं बात करता हूँ, they tell me on the call, I know my body how it reacts। You know nothing about your body। ये फैक्ट है। आप अगर अपनी बॉडी के बारे में इतना कुछ जानते हो, आप रियलाइज करोगे when this confidence become over confidence, और ये ओवर कॉन्फिडेंस में जैसे टर्न होगा, उसके बाद में आप हर चीज को एक बंद तरीके से देखने लगोगे। You will not be open to change, you will not be open to learn something new, you will not be open to make a change in your life because you know your body, and this is a very very common dilemma। बहुत लोग होंगे जो भी ये वीडियो भी देख रहे हैं, उनको होगा I know my body, मुझे पता है फैट लॉस कैसे करना है, मैं कर चुका हूँ पहले। There is obviously category of people who live in that past कि हमने पहले कर चुके हैं या हम बाद में कर लेंगे। I know my body, this is the biggest dilemma which you are into। And why is this the biggest dilemma? Because I know my body के बाद में आ जाता है I know what will work for me, I know what will fit for me, I know what diet will suit me, I know what food will suit me। ठीक है, फूड की प्रेफरेंसेस आप जानते होंगे, हो सकता है आपको एलर्जेंस के बारे में पता होगा कि आप किस चीज से एलर्जिक है। लेकिन जब आप इस मोमेंट पे आ जाते हैं कि मैं अपनी बॉडी के बारे में जानता हूँ, मेरी बॉडी के लिए क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा, here you're making the biggest mistake। Because according to neuroscience as well as how your gastric cognizance works, which is your gut health related to your brain, because gut is considered as the second brain, right? You will be in this dilemma throughout and you will keep eating everything which you may think is healthy for your body, but the body doesn't find it healthy। ये बहुत लोगों के साथ होता है। हम खाते थोड़ा सा है, हम तो डाइट पे हैं, लेकिन हम डाइट्स के एनसाइक्लोपीडिया बन गए हैं, हमने सब चीजें करनी है और हमें पता है हमारी बॉडी के लिए क्या काम करता है। When I speak to these kind of people, the first question which I want to ask them unfilteredly is कि आप मुझसे बात क्यों कर रहे हो फिर इस बारे में? Why would you come to me? But मैं वो बोल नहीं सकता because I have to be subtle in all honesty। But when you go through this dilemma, you would realize कि अगर आप छोटी छोटी चीजें करते हो, अगर आप सुबह उठ करके 20 मिनट की वॉक करते हो, 10 मिनट का मेडिटेशन करते हो, कुछ अपनी फिटनेस के लिए करते हो, आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। लेकिन अगर आप अपने पास्ट टेंस में जी रहे हो तो आप अपने पूरे रिजल्ट्स को सैबोटेज जरूर करेंगे, आप अपने रिजल्ट्स को रिस्ट्रिक्ट जरूर करेंगे। यू विल ऑलवेज बी इन दैट मोमेंट कि आई नो दिस, I know this, I know all of this। That is the problem with majority of the people when they are in fitness। उनको पता सब कुछ होता है and there are coaches also who work with me। उनको सब कुछ पता है न्यूट्रिशन के बारे में, but उनकी बॉडी पे कुछ भी काम नहीं करता है क्योंकि वो कभी भी उसको रियलिटी चेक नहीं करना चाहते हैं। तो this I know my body is linked to arrogance and ignorance, and when you become arrogant and ignorant with this, there is hunger and there is temptation because you think कि अच्छा आपको intermittent fasting करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, आप 20 घंटे 21 घंटे भूखे रहेंगे, 800 कैलोरीज खाएंगे और I know my body के हिसाब से आप एक डिलेमा में हैं। तो ये सारे तीनों फेलियर्स जब एक साथ होते हैं, then there are cases where people say हमने कीटो करा, हमने फिर से फैट गेन कर लिया, हमने फैट लॉस करा, हमने फिर से फैट गेन कर लिया, हमने जिम गए लेकिन हमने जिम के बाद में ध्यान नहीं दिया कि हम उतनी कैलोरीज अपने खाने से कट डाउन करें और एक अलग पर्सपेक्टिव को समझे, तो देन हमने सब कुछ गेन कर लिया। So just to recap this video, these are psychological and neurological processes which a lot of us go, and ये बहुत ही unfiltered वीडियो था। Thank you so much for everybody watching this। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो don't forget to like the video, share this with your friends and subscribe to the channel। नीचे comment section में बताइए आपको ये लॉजिकल लगा कि नहीं लगा। If you want to have a discussion with me, don't forget to DM me on Instagram as well। So I'll see you next week with a new video with some interesting topic। This is Rahul Kamra signing off।